So if you remember our last period, you found that we were discussing about the model, isn't it? Bohr's theory we have seen yesterday, isn't it? Do you remember? Isn't it? And now here today, we are going to see about the interpretation now. As you know, we were discussing about the atomic model. We have seen the J.G. Thomson model. We have seen about the Rutherford model. We have seen about the Bohr's model, postulates of the Bohr's model. Yesterday, we have derived the expression for the radius of the electron, which is radius of the orbit of the electron, in which it is revolving around the nucleus in a circular orbit. In addition to that one, we have also seen the expression for the energy of the electron in the orbit, because in the postulates of the Bohr's theory, we have seen that each electron is revolving in a orbit with a particular value of energy. That means energy of the electron in the orbit, it is fixed, and the expression for the energy of the electron in that particular orbit we have derived yesterday. Have you got this one, please? May I continue, Parisha, Fatiha? Yes, sir. Yes. So now this next article that we are going to see about the Bohr's interpretation of the hydrogen atom. We have seen that every element, whether it is hydrogen, helium, oxygen, chlorine, uranium, whatever it may be, it is made up of large number of atoms, isn't it? Now hydrogen, it is the first atom of the periodic table, which having Z is equals to 1, isn't it? And in the yesterday's lecture, we have derived the expression for the radius of the first orbit, second orbit, and so on. So in addition to that one, we have also seen in the Bohr's model, or in the Bohr's assumption, that the electrons which is revolving in the first orbit, it has the energy, suppose E1. This electron, when get the energy more than E1, it jumps from first orbit to the what? सेकंड ऑर्बिट. यस, इसी तरह अगर उसकी एनर्जी जब E1 से ज्यादा हो जाएगी तो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा. सेकंड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी E2 रहेगी. अगर E2 से भी उसकी एनर्जी बढ़ गई तो उन्हें वहां से जंप लगाकर तीसरे में जाएगा. एम आई करेक्ट? उसी तरह अगर उसकी एनर्जी कम हुई तो वो जंप लगा के नीचे आएगा. तो अगर समझो उसकी एनर्जी पहले दूसरे ऑर्बिट में E2 है या En2 है, और पहले ऑर्बिट में एनर्जी En1 है, तो जो रेट, जो एनर्जी का जो चेंज होगा, तो क्या होगा, उन्हें एनर्जी दे के जो है, तो दो नंबर के ऑर्बिट में था, उस वक्त एनर्जी कितनी थी? En2 बराबर है. और जब एक नंबर के ऑर्बिट में आया उस वक्त एनर्जी कितनी है? En1. तो दैट्स व्हाई if the electron jumps from the outer initial orbit N2 of higher energy to the lower orbit N1, or lower energy orbit N1, then frequency of the radiation emitted is given by nu is equals to En2 minus En1 upon h. बराबर है कि ये एक्सप्रेशन जो मैं यहाँ लिखा? क्योंकि एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है अपनी? कल मैंने क्या बोला? E is equals to h nu. बराबर है क्या? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. करिशा, मतलब बराबर है? अफीफा, अपन ने कल क्या बोले पॉस्टुलेट्स के वक्त? कि अमाउंट ऑफ एनर्जी radiated by the electron at the time of jumping from one to next or next to first orbit, it is equals to E is equals to h nu. Am I correct? Are you agree with my this? Are you agree with this, my? Yes, sir. Yes, sir. तो then अगर वैसा अगर है तो वैसी सूरत में क्या बनता फिर? E is equals to h nu. वहां से अपनी को अगर न्यू की एक्सप्रेशन होना तो न्यू की एक्सप्रेशन क्या आएंगी? न्यू इज इक्वल्स टू E अपॉन h. एम आई करेक्ट? Yes, sir. अब E अपॉन h, where nu is what? Frequency of radiation, isn't it? E is what? Frequency of radiation. Energy of radiation in the orbit
divided by h बोले तो h is what? Planck constant. Constant. Now here energy is not only the energy in the orbit, but we want the net change in energy when the electron is jumping from the higher energy level to the lower energy level. यानी कि उस वक्त एनर्जी का डिफरेंस लेना पड़ेगा. Am I correct? En2 minus En1, isn't it? En2 minus En1. En1. So therefore, nu should be equal to En2 minus En1 divided by h. Are you agree with this mathematical formula? Yes, sir. Now, if it is so, लेकिन what is En2? अपन ने कल एक्सप्रेशन निकाले ना, E1, E2, E2 की क्या एक्सप्रेशन निकाली है? क्या एक्सप्रेशन है? En1 या En2 या En3 माइनस m e raised to 4 z स्क्वायर अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर. याद आ रहा कल की एक्सप्रेशन? Isn't it? Yes, sir. So now what is En2 then? क्या लेंगे अपन En2? En2 should be equal to m e raised to 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये 1 अपॉन n2 स्क्वायर. Isn't it? उसी तरह Yes, sir. En1 ये पूरा जैसा कि वैसा माइनस m e raised to 4 8, ये पूरा खाली n के जगह पे, यहाँ पे n2 की जगह पे उसकी वैल्यू रखना. n1, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन के वास्ते z is equals to 1. तो लिहाजा ये इक्वेशन ऐसी बनेगी क्या? nu is equals to en2 minus en1 upon h should be equal to, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन, ये दोनों के सब्सट्रैक्शन में दिस पार्ट इट इज कॉमन. ये पूरा कॉमन रहेगा कि नहीं है? तो फिर Yes, sir. 1 अपॉन n1 इस, और ये वो भी निगेटिव साइन है. निगेटिव साइन अगर एब्सॉर्ब करने की, यहाँ एक्चुअल में कॉमन क्या निकल रहा? माइनस m e raised to 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, isn't it? h स्क्वायर. am I correct? लेकिन अपने को क्या करने का? ये कॉमन निकालने का. तो ये कॉमन निकालने का, तो इसके वास्ते जो है तो अपने को क्या करने का? ये माइनस प्लस साइन इधर ले लिए, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. isn't it? Are you agree with this equation? और ये जो न्यू है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड. और इसको दूसरा नाम है, इसको अगर हमें बार दिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट विल कॉल्ड एज द वेव नंबर. दैट इज द वेव नंबर न्यू बार ऑफ द रेडिएशन. अब इसको अगर अपन ने इसका रेसिप्रोकल अगर लिया अपन ने ये फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होगा? वो वेव नंबर v बार न्यू बार ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वेवलेंथ. क्योंकि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या रहता? वेव नंबर. वेव नंबर का रेसिप्रोकल क्या रहता? वेवलेंथ. isn't it? तो वेव नंबर of the radiation is defined as the reciprocal of its wavelength lambda in vacuum and gives the number of waves contained in unit length. क्या वेव नंबर से क्या मुराद? कि यूनिट लेंथ में कितने जो है तो वेव्स रहेंगे उसको डिफाइन करता है. यानी कि न्यू बार शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, एंड 1 अपॉन लैम्बडा शुड बी इक्वल टू v अपॉन c. मालूम है क्या? ये फार्मूला है वेव्स के वास्ते, isn't it? And therefore this new bar it should be equal to क्या? m e raised to 4. ये जैसा कि वैसा, इसके जगह पे 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द बोर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द हाइड्रोजन. सर वो टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड नजर नहीं आ रही. कौन से टॉपिक से? ये जो अभी चल रहा है ना. अभी आपको नहीं दिख रही? बोहर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं दिख रहा? नो सर, ये फाइल फोल्डर नजर आ रही है. कौन सी वो फाइल? लिस्ट नजर आ रही सर. कौन सी? अच्छा, मैं एक बार लेक्चर्स और टाइमिंग की लिस्ट नजर आ रही सर. 2 मिनट, हाँ मैं डबल से कर दूं. ठीक है. हैव गॉट नाउ? यस सर. बोहर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है ये स्लाइड. यस सर. हाँ, तो अपना क्या चल रहा है? आपको निकल का एक एक्सप्रेशन निकाले, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट. बोहर्स ऑर्बिट बोलते हैं उसको क्योंकि बोहर्स ने निकाला था साथ, वो ऑर्बिट को क्या नाम देके पुकारते? बोहर्स ऑर्बिट. फिर अपन ने यस्टरडे और का एक्सप्रेशन ड्राइव करे, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. पहले ऑर्बिट में है तो n इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट में निकालने का तो n इज इक्वल टू बराबर है. याद आ रहा कल का? प्लीज टेल मी मदिया, अर्शिया, हरीशा. यस सर. ये एक्सप्रेशन कल की.
ये एक्सप्रेशन आ रही क्या याद? ये काय की एक्सप्रेशन है? बोलिए मुझे आप। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, बराबर है? यस सर। मदिया, अर्शिया, Yes, sir. चलिए। तो अब अपने को क्या करने का, जब एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस और एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास है, तो नाउ इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू सी द jumping of the electron from first orbit to next in terms of energy, and it will take place in case of hydrogen atom. हम क्या बता रहे हैं कि हर एटम जो है, तो हर एलिमेंट को क्या है, एटम है। हर एटम में कौन है, न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके अतराफ इलेक्ट्रॉन्स है। जस्ट ए मिनट, आई विल Are you getting, please? Some technical problem was there. I was muted. फरीश अहमद। यस सर, अब आया। हाँ, तो बोर्ड्स इंटरप्रिटेशन अपने को देखने का है हाइड्रोजन के आस्ते। इसमें आस्ते अपने को क्या है कि अपनी जम से जो है अपने बोर्ड्स में देखे अभी पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते एनर्जी हासिल करने के बाद, दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आते एनर्जी लॉस करने के बाद। तो अगर अपने, और इसकी वजह से क्या तैयार होता, स्पेक्ट्रम। इसकी वजह से क्या तैयार होता, स्पेक्ट्रम। तो फिर अपने को यहाँ पे अपन क्या निकाले, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द आउटर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट, then at that time En2 is equals to minus me e raised to 4, ये दोनों का चेंज आएगा, न्यू इज इक्वल्स टू En2 माइनस E1 अपॉन h। ये एक्सप्रेशन समझिए आपको? अनम्यूट रहिए आप और बोलते रहिए यस नो यस नो। ये एक्सप्रेशन समझी? यस सर। ये एक्सप्रेशन कहां से आई? E इज इक्वल्स टू h न्यू की बुनियाद पर आई हो। E इज इक्वल्स टू h न्यू। मतिया ऑफलाइन रहिए प्लीज, म्यूट रहिए। तो E इज इक्वल टू h न्यू है। तो अब अपने को En2 की एक्सप्रेशन क्या है, दिस वन, बराबर है क्या? En1 की एक्सप्रेशन दिस वन। तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसी बनेगी? ये दोनों का जो है तो कम मुश्तरक क्या निकलेगा, m e raised to 4 अपॉन दिस वन, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर। वेव नंबर किसको बोलते हैं? वेव नंबर रेसिप्रोकल रहता वेव लेंथ का। वेव नंबर इसको डिनोट कैसा करते हैं, न्यू। न्यू अगर फ्रीक्वेंसी है तो न्यू के ऊपर अगर आपने बार दिए, न्यू बार, इट इज कॉल्ड एज द वेव नंबर ऑफ द रेडिएशन, एंड दिस न्यू नंबर इज व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो न्यू बार को अगर लिए तो इट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा। ये अब इसके वास्ते एक एक्सप्रेशन है v अप न्यू अपॉन c, मालूम है ना आपको? यस सर। पढ़े आपने? तो therefore न्यू बार, that is the wave number of a radiation. In case of hydrogen, it is given by m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square c h cube upon 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Have you got this expression? May I go ahead, please? यस सर। चलिए। So now after having seen this expression for the wave number of the radiations which are jumping from the one orbit to the another orbit, ये तीनों आर्टिकल से और बोर्ड्स के जो है तो इंटरप्रिटेशन के बाद आपको इतना समझ में आ गया क्या कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते, इतना समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब रहते अपनी मखसूस एनर्जी रखते, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। एक और चीज अपने समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से जंप लगा के दूसरे ऑर्बिट में भी जाते। यस सर। क्या बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
Are you, if you want to say something, Farisha, Madhya? No, No, sir. sir. So electron jumps from the first orbit to the second orbit, or from second orbit to the third orbit. Cup, when they get the energy. Gain energy. Yes. You also knowing that electron is coming or jumping from the third orbit to second orbit, from second orbit to first orbit when they lost the energy. Are you agree? Yes, Yes. sir. Due to this jumping of the electron from first orbit to the second orbit to third orbit and so on, and back jumping also, there is a such type of spectrum. Are you agree? इतना मालूम है आपको? Yes, sir. जंपिंग की वजह से क्या तैयार होता है? स्पेक्ट्रल लाइंस तैयार होते। ऐसे पहले से दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में, इस तरह की जंपिंग के बाद ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस का एक मजमुआ तैयार होता। 2-3 लाइंस रहते, पहला दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह का तैयार होता है। मैं करेक्ट? कल जैसा मैंने बताया था आपको। आर यू एग्री विद Yes, दिस? sir. Yes, sir. ये ऐसे 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 लाइन शुरू होते बताया था मैंने आपको। ये ऐसे दिख रहा है? Yes, sir. ये इस तरह का ये जो दिखना है, ये क्या कहलाता? इसको क्या बोलते हैं आप? Spectrum. Spectrum. It is called as spectrum, isn't it? Now Yes, sir. hydrogen atom is also having spectrum. Other elements are also having spectrum. And now due to the jumping of the electrons from the different orbits give rise to the spectrum. And this single line, it is called as the spectral line. Are you agree with this my suggestion? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब अपने को ये भी मालूम है कि पहले ऑर्बिट में से जंप लगा के दूसरे में जाता, या दूसरे से तीसरे में जाता, तीसरे से यानी जब हायर ऑर्बिट में जब जाएगा उस वक्त उसका वेव नंबर बदलता। आप इससे एग्री है कि अभी पिछले इक्वेशन से ये इक्वेशन से ये बदलेगा कि नहीं जी? ये क्या है? वेव नंबर। ये वेव बदल नंबर सकता सर। ये बदलेगा कि नहीं? ये यहाँ पे ये इस वेव नंबर में ये सब तो कांस्टेंट है। ये क्या है? क्वांटम नंबर इन द फर्स्ट ऑर्बिट, बराबर है? n1 इंटीजर, n2। यस सर। अब अगर मेरे को दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तीसरे से चौथे में जा रहा, तो यहाँ मैं क्या लिखूं? या पहले से दूसरे में जा रहा, तो यहाँ n1 की कीमत मैं क्या लिखूंगा? 2। 1 इसकी कीमत 2। आगे का होगा तो 3 4 4 5 है कि नहीं? मतलब वेव नंबर बदलेगा कि नहीं? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाएंगे तो। आर यू एग्री? यस सर। So when the jumping of the electron takes place from the one orbit to the other and other to so on, whether this wave number will be changes or not? Yes sir. ये एक्सप्रेशन हर वक्त चेंज होंगी क्या नहीं? सेकंड से थर्ड में, फोर्थ से फिफ्थ में जाएगा तो इक्वेशन में तब्दीली आएंगी क्या? आर यू एग्री? यस सर। चलिए, Yes. इसको बुनियाद बना के अगर हम बोलेंगे when the electron jumps from second, third, fourth orbit etc. to the first orbit, यानी कि दूसरे से पहले में आ रहा, तीसरे से पहले में आ रहा, चौथे से पहले में आ रहा, ऐसा होगा कि नहीं? इज इट पॉसिबल? यस सर। कब होगा ऐसा? दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, कब होगा ऐसा? एनर्जी लूज होंगी जब। एनर्जी लूज होगी उस वक्त। अगर हम बात करें तो उस वक्त भी एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उस वक्त भी एक सीरीज बनेगी। कब? जब दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, उस वक्त इसके यहाँ से नीचे आने से स्पेक्ट्रम तैयार होगा कि नहीं? जी सर। एक सीरीज बनेगी कि नहीं? एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसा होगा कि नहीं? यस। और जब इस तरह होगा, when the jumping of the electron takes place from second, third, fourth to first orbit, लोअर में भी, अब यहाँ लोअर वगैरह मत बोलो, दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवे से पहले में। So when the jumping of the electron is taking place from second, third, fourth and so on orbit to the first one, it gives rise to spectral lines। बराबर है कि नहीं? पहले की लाइन, दूसरे से पहले में की लाइन, तीसरे से पहले में की लाइन, चौथे की पहले, ऐसे लाइन बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पेक्ट्रल लाइंस। आर यू एग्री? Yes. रहेंगी कि नहीं? यस सर। And this series, when the electron is jumping from the second, third, fourth orbit to one, this series is called as Lehman series. This series is called as लेमन सीरीज। Lehman series। आपने पढ़े भी होंगे कहीं तो इससे पहले भी। तो आपको अगर पूछे what is the Lehman series, what you will say मधिया? Jumping of electron from the second, third, fourth orbit to फर्स्ट ऑर्बिट। called as
Lemon series. And what is the expression for the wave number of that series? Nu bar, it should be equal to Equal r. to. r बोले तो ये कांस्टेंट है ना पूरा ये Yes, sir. m मास e ये सब पूरा कांस्टेंट, इसकी जगह पे क्या लेने का R. r, which is called as Rydberg constant, is equal to क्या एक्सप्रेशन थी वो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2. n1 क्या है यहाँ पे? क्वांटम नंबर। हाँ क्वांटम नंबर. तो पहले 1 है. 1 है क्योंकि हर एक आके कहाँ गिर रहा है इलेक्ट्रॉन दूसरे से 1 पे 1 पे. तो n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 3 4 5 है. तो फिर वो एक्सप्रेशन ऐसी बनेगी क्या जी? न्यू बार इज इक्वल टू r अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. isn't so? Madhya, please unmute. Yes, sir. Yes, sir. And this expression is nothing but this is the expression for the wave number when which series takes place? Lemon series. लेमन से. Yes. समझ में आ रहा है कि बात क्या? और एक बार रिपीट करूं? Yes. No, sir. उसी तरह हमेशा ऐसी छूंगा क्या कि पहले में से यानी कि दूसरे से पहले में तीसरे से पहले में आएंगी. ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे से when the electron jump from the outer orbit to second one, यानी तो तीसरे से दूसरे में भी आएगा कि नहीं, चौथे से दूसरे में आएगा, पांचवे से दूसरे में आएगा. उस वक्त क्या होगा? n1 इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा वहां? 2 और n इधर n2 3 3 4 5. तो उस वक्त ये एक्सप्रेशन कैसी बनेगी? जो नंबर की r न्यू बार इज इक्वल टू r अपॉन 2 square minus 1 upon 3 square or 4 square. and when the jumping of the electron takes place from second orbit to third, fourth, fifth and so on, then due to this jumping of electron, spectral lines are formed, a series is formed, and that series is called as the Balmer series. That series is called as Balmer series. ये बहुत इंपॉर्टेंट. वैसे हुआ इससे पहले कहीं ना कहीं आप पढ़े, आता कि याद थोड़ा बहुत आपको बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज पढ़े कि कहीं याद आता? पूछ रहा नहीं मैं, खाली याद आता कि पूछ रहा हूँ. मैं दिया हुआ क्या कहीं बेटा ये? Yes. Yes, sir. तो याद रखिएगा, जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट वन. या नहीं तो और भी शार्ट अगर बोलने का तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट whose quantum number is 1 is called as Lehman series. Jumping of electron from the higher orbit to the second orbit n is equals to 2, it is called as Balmer series. Balmer series. वहाँ यल कुछ है तो साइलेंट रख के बामर बोलने का, तो बाल्मर भी बोल सकते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डेट इज कॉल्ड एज बामर सीरीज. दूसरा क्या रहेगा? अब इसके हिसाब से अब क्रोनोलॉजी देखिए आप. n1 is equals to 1, n is equals to 2, n1 is equals to 3, यानी कि चौथे से तीसरे में, पांचवे से तीसरे में, छठे से तीसरे में उस वक्त अगर रहा तो उस वक्त भी एक सीरीज बनेगी, एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज पास्चन सीरीज. दैट इज कॉल्ड एज Paschen series. पास्चन सीरीज. उस वक्त ये फार्मूला कैसा बनेगा? फिर खाली लॉजिक इस्तेमाल करो आप. एक की दूसरी, दो की दूसरी, पास्चन के वक्त 3 की दूसरी. बस हो गया. इतना फर्क रहेगा. पहले यानी कि हायर से पहले में, हायर से दूसरे में, हायर से तीसरे में, हायर तीसरे से में, हायर से चौथे में. चौथे में. At that time it is called as which series is formed? Bracket series. लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन. अगर बोलने को यहाँ समझाने को बड़ा आसान दिख रहा है, आपको याद भी आ रहा, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यू क्या सकता, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के, ये फार्मूले की मदद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे. ये फार्मूले की मदद से एमसीक्यू भी आएंगे आपको एग्जाम से. करीब करीब 3 से 4 एमसीक्यू आते हैं इसके ऊपर. Isn't it? तो याद रखिएगा, बामर के वक्त, लेमन के वक्त न्यू बार इज इक्वल टू r 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. उसके वक्त ये हो गया लेमन के वक्त. बामर के वक्त 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस, और ये r हमेशा कांस्टेंट. ये r किसके जगह पे लिया अपन ने? m e raised to 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट है ना, वो उसके जगह पे. दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायर्ड कांस्टेंट. उसी तरह कितने ऑर्बिट हो सकते? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट जाते. चौथे से अगर n1 इज इक्वल टू 4 के बाद अगर n1 इज इक्वल टू 5 रहा तो n2 क्या आएगा फिर यहाँ? अगर n1 इज इक्वल टू 5 तो n2 इज इक्वल टू 6 7 8 and so on. तो उस वक्त when this is taking place, it is called as the P-Fern series. It is called as
P fund series. फंड सीरीज। समझ में आई बात? Yes, sir. इसका जो वो बनता है, एक और चीज याद रखिए कि ये इनके जो थे, इनके जंपिंग की वजह से क्या तैयार हो रहा जी? सीरीज तैयार हो गई। यानी कि क्या बन रहा? इसको मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनते, ये स्पेक्ट्रम बनता। तो स्पेक्ट्रम का आपको मालूम है स्पेक्ट्रम कितने हिस्सों में तकसीम है जी? थोड़ा सा इससे हट के बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम कितने हिस्सों में तकसीम है? पढ़े क्या आपने? कभी याद आता क्या आपको? डू यू रिमेम्बर? 7. हाँ, ज्वार वगैरह ये कभी आएगा आपने पढ़ने में? आया कभी अभी तक थर्ड ईयर के पूरे उसमें एजुकेशन में? स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स. डू यू रिमेम्बर? Two are the invisible region and one is the visible region. आ रहा है कि मैंने पढ़ाया था, याद आता? इनविजिबल रीजन यानी कि इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन। ये रीजन किसके बुनियाद पे बनते? वो लाइट दिखने पे। दिखने बोले तो लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से बनते, जिनकी वेवलेंथ 47 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 6500 के एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के दरमियान है, वो विजिबल रीजन है। जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। वायलेट के ये साइड के जो रहते, लेफ्ट साइड के, वो आते जो है तो इंफ्रारेड रीजन, यानी कि जिसकी वेवलेंथ वायलेट से भी कम है, वो अपने को दिखता नहीं, वो इनविजिबल रीजन है। लेकिन स्पेक्ट्रम का रीजन है वो, उसको कौन सा रीजन बोलते हैं आप? इंफ्रारेड रीजन, सॉरी अल्ट्रावायलेट रीजन। और जिसकी वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा रहती, 6500 एंगस्ट्रॉम यूनिट, उसको कौन सा रीजन बोलते हैं आप? इंफ्रारेड रीजन। याद आ रहा क्या बेटे? यस सर। तो यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि ब्रैकेट और पी फंड सीरीज में जब जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम 4 and 5, उस वक्त जो स्पेक्ट्रल लाइन दिखते वो कौन से रीजन से बिलोंग करते? दे आर वेरी फार फ्रॉम द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द हेटेरोजन स्पेक्ट्रम। अब अगर हम पुट करेंगे n is equals to infinity, each of one series we get the wave number of the series limit, that is the last line in the series, electron jumps giving rise to, या इस तरह। अब ये जो अपन ने बोले ना कि दूसरे से पहले में आ रहा, तीसरे से दूसरे में आ रहा, चौथे से दूसरे में आ रहा, उसको अगर बताने का है तो ऐसा बता सकते कि नहीं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते कि नहीं? सेंटर में कौन है? ये काला न्यूक्लियस। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, दूसरा, ये तीसरा ऑर्बिट। अब देखिए इसमें पहली लेमन सीरीज में कौन कहां से जाता? दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में। बामर सीरीज में कौन कौन कहां से जाता? दूसरे से पहले में, तीसरे से दूसरे में, बामर में, तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पांचवे से दूसरे में, छठे से दूसरे में। बराबर है क्या? दिख रहा है क्या? अपन जो अभी पढ़ के आए तो ऐसा उसको प्रेजेंट कर सकते कि नहीं ऐसा? यस सर। This is the graphical representation of jumping of electron from one orbit to the, ये जो गोल उतार है ये क्या है? जिसको क्या बोलना अब यहाँ? क्या बोलूं इसको मैं? क्या है ये? स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल्स। और ये जो लाल ब्रैकेट, लाल से जो इसके साथ एरो के साथ बताइए क्या है जी? आपके जंपिंग है, स्पेक्ट्रल लाइन से है कि नहीं? बताने को बोले तो ये टोटल क्या हुआ? ये ब्रैकेट सीरीज हुई। ये कौन सी सीरीज हुई? पी फंड सीरीज। ये कौन सी सीरीज हुई? लेमन सीरीज। अभी जो थियोरेटिकल बोले उसको आपने इससे बताया क्या नहीं? ग्राफ से? यस सर। Yes, sir. Graphical representation of the jumping of electron from one energy level to end and formation of the spectral lines, it is called as energy level diagram. इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर आपका एग्जाम अगर समझो पुराने तरीके से होता है, यानी कि एमसीक्यूज नहीं होता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछता, डिफाइन द डिफरेंट सीरीज ऑफ द हेटेरोजन स्पेक्ट्रम एंड गिव इट्स एनर्जी लेवल डायग्राम। या क्वेश्चन ऐसा आता, विद द हेल्प ऑफ द नीट एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द हेटेरोजन एटम स्पेक्ट्रम। Such type of questions are also oriented in the examination. So this is the graphical representation of the jumping of electron or heterogen ion spectrum. समझ में आ रही क्या बात आपके? यस सर।
अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है तो ये इसकी मदद से रहती है। अब यहाँ पे आपने यम ई इस्लाम नॉट की वैल्यू रख दी है और z इज इक्वल टू 1 रखे, तो किसके लिए मिलेगा? z इज इक्वल टू 1 किसके वास्ते है? एटॉमिक नंबर किसका एक है? हाइड्रोजन का। Isn't it? समझ में आ गई बात? अब ये इस तरह की एनर्जी लेवल डायग्राम उतार सकते हैं, या एनर्जी लेवल ये जो गोल पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल है, इसको आप ऐसा भी बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, ये ऐसा भी ले सकते हैं आप। देखो दिख रहा क्या? n इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 3, कुछ नहीं करा वहां पे, जो गोल बताए तो उसकी जगह पे ऐसा भी ले सकते हैं आप। इट इज ऑल्सो एनर्जी लेवल डायग्राम, इट इज ऑल्सो एनर्जी लेवल ऐसा भी बता सकते हैं, वैसा भी बता सकते हैं, दोनों तरीके हैं इसके। और फार्मूले में एनर्जी लेवल डायग्राम इक्वेशन किस बुनियाद पे? En इज इक्वल टू दिस वन। अब आप यहाँ पे m की कीमत रखिए 9.1 इंटू 10⁻31, E यानी कि चार्ज 1.6 इंटू 10⁻9, पहले हाइड्रोजन की z इज इक्वल टू 1। ये पूरी अगर कीमत रखे तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आएंगी? -13.6 इंटू 1/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको दूसरे में होना तो क्या करना आपने? n की कीमत पहले में अगर होना तो n की कीमत 1। हाँ, तो 1 कितनी है? पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी रहेंगी? फिर E1 इज इक्वल टू 1 माइनस 13.6 इंटू डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 13. अब आप बोलेंगे एनर्जी निगेटिव है, तो समझो ये जो निगेटिव आया ये यहाँ पर मैथमेटिकल है, लेकिन एनर्जी पहले ऑर्बिट में कितनी है? 13.6। दूसरे में तीसरे में इस तरह से। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 is called as the normal or ground state. Atom at higher energy levels are E2, E3 and E4 called as the excited state. सबसे कम पहले स्टेट में जब रहेगा उसको कौन सा स्टेट बोलेंगे आप? ग्राउंड स्टेट। और तीसरे, चौथे, पांचवें में रहेगा तो कौन सा स्टेट कहलाएगा? एक्साइटेड स्टेट। As the n increases, क्या देखिए आप? En also increases. As the n increases, energy level crowd and tend to form the continuum. जैसे जैसे आपका n बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे और वो continuum ऐसा 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 बढ़ता चला जाएगा। Isn't it? In the energy level diagram, discrete energy states are represented by horizontal line. दिख रहा है क्या? discrete energy level कैसे बताया अपन ने? कौन से लाइन से? गोल बताए क्या? नो सर, स्ट्रेट horizontal line से। और इलेक्ट्रॉन जंपिंग अपन कैसा बता रहे? ये एरो से बता रहे। And this is called systematically how spectral lines are related to the atomic energy levels. Have you got? इस तरह से यस सर। एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऐसा रहता। ये स्पेक्ट्रम मैंने बताया ना, ये देखो इधर के इधर इधर जितना रहेगा सब जो है तो वो रहेगा। बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लाइन की मदद से बता रही है। ये जो है ना वेवलेंथ है ये। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या है? ये जो दिख रहा है क्या? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है? विजिबल रीजन है। ये 650 के आगे इधर कौन सा रीजन है? इंफ्रारेड रीजन है। 400 से आगे इधर भी अल्ट्रावायलेट रीजन है। मतलब इधर का भी दिखता नहीं और इधर का भी दिखता नहीं। कहाँ तक दिखता आपको? बहुत मुश्किल, ये भी नहीं दिखता, बल्कि 434 या 425 से आगे इधर का दिखता खाली। तो ये कौन सा रीजन है? विजिबल रीजन। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस पाचन सीरीज, बामर सीरीज आ रही, इनका भी दिखना कहाँ तक मुमकिन है? कुछ इंफ्रारेड में दिखेंगे, कुछ विजिबल में दिखेंगे, कुछ अल्ट्रावायलेट में दिखेंगे। इस तरह से अगर देखिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आपको बोले उतारने को तो ऐसी देखिए n1 इज इक्वल टू 1, उस वक्त E1 इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्म। कौन सी सीरीज हुई है? लेमन सीरीज। दूसरे क्या वक्त? बार्मर सीरीज and so on, isn't it? So this is nothing but this is the energy level diagram of hydrogen. Have you got, please? Yes sir. So this is the change in energy in the first orbit, f orbit and so on, delta E, delta H and so on. So thank you. With this one I think all the articles related to this particular chapters are over. Tomorrow inshallah I will try to solve some numerical problems, then we will also see some MCQs so that both the way preparation will be done. किसी कुछ पूछना है क्या? नो सर। बढ़िया। अर्शिया तरन्नुम क्लास में? यस सर। देखो बेटे समझने की कोशिश करो, नहीं तो बाद में फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। So we shall stop here today. अच्छा। If you want to ask any question, you may please ask.
पूछना है कुछ? अफीफा है? No, sir. अफीफा का माइक ये शायद काम नहीं कर रहा। अफीफा, आर यू देयर इन द क्लास? कैन यू से समथिंग? आप ये देख रहे हैं कि मैंने जैसा बोला कि आर्टिकल खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हुआ क्या? हुआ क्या चैप्टर खत्म? पूरे आर्टिकल हो गए क्या? देखो, थॉमसन मॉडल हो गया, रुदरफोर्ड मॉडल हो गया, दिख रहा ना? एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइट, ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज हाइड्रोजन एटॉमिक लाइट्स अबाउट, हो गया क्या सब? हाँ सर। Yes, या sir. फरीशा बोलिए बेटा प्लीज। Yes, sir. So with this one, all the articles have covered. Tomorrow, inshallah, I will try to solve some of the numerical problems. You are requested to keep with you one pen and your notebook, isn't it? Yes. So thank you Yes. for joining me. Inshallah, we will meet tomorrow. Have a nice time ahead. Thank you. Thank you.